Now I will hand over the meeting to the President. President, sir. Ajay, thank you very much. Dua Sahab, very nicely run national anthem. Thank you. And thanks to Sushita ji. Thank you, sir. Dear friends, good evening. On my behalf and behalf of my club Rotarians, let's welcome our chief guest, Dr. Chitra Prasad, Professor of Pediatrics, Genetics and Metabolism at the Western University, London, Ontario, Canada. Topic: Poetry and Emotions of Celluloid, Role of Hindi Films, Lyrics. Dr. Chitra Prasad is a professor of pediatrics, genetics and metabolism at Western University, London, Ontario, Canada. She is lifelong student of arts and music. She is also an ardent fan of Hindi literature, poetry and films. Her admiration of poetry and its prominence in the lyrics, styling of Indian cinema led to conceptualization of this book. I would like to request Dr. Meenu Singh ji to introduce our guest speaker. Thank you, sir. And I'm extremely delighted today to have Dr. Chitra Saxena Prasad amongst us. She is currently, as has been introduced by Dr. Jaspal sir, that she is a professor of pediatrics and genetics in the Western University at London, Ontario. And but the best part of it is that she was trained in PGI and she did her residency in pediatrics, and we were batchmates here. And she had done her graduation from CMC Ludhiana, and she actually belongs to a family of doctors from Rewari in Haryana. And her parents, we are very fortunate to have them with us today. Welcome. Currently the professor of clinical genetics and director of metabolic clinic and newborn screening at London Health Sciences Centre. She has established autosomal disorders and other rare disorders as well, such as porphyria at this health facility at London. She has extensively researched on subjects of genetics, and she has received her fellowship training from Newfoundland, Canada, and also from Harvard University, Boston, USA. It's actually, she's a very celebrated name in medical genetics, but that's not what she's going to talk about today. Her passion has also been music, and she sings very well. And I do remember the days in PGI when she used to carry the audience, you know, with her singing. And we don't forget her performances. And we also used to accompany her in Saraswati Vandana, you know, and all those kind of things. So it's really wonderful having Chitra with us today. Most recent book which she has written about poetry and emotions on celluloid. Poets and shires who have contributed to Hindi film music, and recently we lost Lata Mangeshkar, and she has written about several songs, I think, which have been sung by Lata ji as well. So welcome, Dr. Chitra. Namaste, shukriya, मेहरबानी, आदाब, सत श्री अकाल। और बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर लें जब मैं बोलूं, और उसके बाद फिर ऑन कर लीजिएगा। तो जैसे मीनू ने कहा, मैं और मीनू हम साथ हमने ज्वाइन किया था पीजीआई में, और हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप तब से है 1983 से। और डॉक्टर वालिया हमारे प्रोफेसर थे, और उन्होंने खाली पीडियाट्रिक्स ही नहीं सिखाई, हमको शायरी को अप्रिशिएट करना भी सिखाया,
और ह्यूमन इमोशंस को जानना सिखाया। तो वो दिन तो हमेशा मेरी जिंदगी में जिंदा रहेंगे। और मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि जूम के थ्रू आप लोग सबसे मिल रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा नेशनल एंथम सुन करके। और जैसे कि मैंने कहा, मेरे मम्मी पापा लायंस क्लब के मेंबर्स और काफी एक्टिव रहे हैं, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सोसाइटी के लिए कर रही हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। तो मैं आपको जो थोड़ा सा आज बताऊंगी अपनी किताब के बारे में, पोइट्री एंड इमोशंस ऑन सेलुलॉइड, रोल ऑफ हिंदी फिल्म लिरिसिस्ट। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आएगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी माँ को, डॉक्टर तारा सक्सेना, और मेरी बहन डॉक्टर मित्रा सक्सेना को, क्योंकि उन्होंने मुझे नए और पुराने दोनों गीत काफी उसमें मदद करी। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर इन दो पंक्तियों के साथ जो सूरदास फिल्म में के.एल. सहगल साहब ने गाई थी। कविता सूनी सुर बिना, सुर उसका सिंगार, जब वो दोनों मिल गए मिले दिलों के तार। तो वाकई कविता और सुर दोनों ही बहुत जरूरी हैं किसी भी गाने के लिए। और बोल यानी कि लफ्ज या धुन, इसमें से कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, सबका मानना है, और यहाँ तक कि हमारी लता जी का भी था कि बोल अधिक जरूरी हैं। और शब्द जो होते हैं वो आत्मा होती है एक गाने की। जिन गानों के शब्द हमारे दिल को छू जाते हैं वो फिर गाने अमर हो जाते हैं। पर दोस्तों, इन शब्दों की रचयिता को इतना सम्मान नहीं मिल पाया, जैसे कि आप सब जानते हैं। और मेरी भी इस पूरे सफर में मैंने ये देखा कि कितने गाने मैं गाती थी और मैं खुद ही नहीं जानती थी कि ये किसने लिखे हैं। तो ये इनको क्योंकि सम्मान नहीं मिला है, इसलिए मैंने ये किताब लिखी है। और इस किताब में 72 लिरिसिस्ट के बारे में मैंने लिखा है जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए लिखा है। और इसमें मैंने कई सारे बहुत ही जाने माने शायरों को भी शामिल किया है, जैसे कि आप सब जानते हैं साहिर, कैफी आजमी, मजरू, आनंद बख्शी, नीरज, गुलजार वगैरह। पर कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम लोग उतना नहीं जानते और जिन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, जैसे कि एस.एच. बिहारी, अनजान और असद भोपाली, नक्शलाल पुरी वगैरह। हिंदी फिल्म जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और हमारे भारतीय मानस पटल में आप सभी जानते हैं कि कथाओं और गीतों का प्रभाव चिरकाल से है, जैसे कि महाभारत, रामायण, कालिदास के अभिज्ञान, शकुंतलम। तो हम लोग तो हमारा तो पूरा जो ये भारत प्रदेश है, ये सारा का सारा कथाओं और गीतों से ही हम लोग बड़े हुए हैं। और जब बम्बई में, उस वक्त तो बम्बई कहते थे, मुंबई में उर्दू फारसी थिएटर पहले आया और ये अराउंड 1930s के करीब था। और वहीं से जन्म लिया हिंदी फिल्मों ने। शुरू में हिंदी फिल्म साइलेंट होती थी, मौन, पर बाद में बोलने वाली हो गई, जैसे कि आलम आरा। और उनमें कई सारे गाने होते थे, जैसे इंद्र सभा में 60 गाने से ज्यादा थे। और आप सभी वाकिफ हैं कि हमारे जीवन में बच्चे के होने से पहले से लेकर मरण तक गीतों का भरमार रहती है, चाहे वो हमारा फोक म्यूजिक हो, चाहे कोई भी म्यूजिक हो। पर हम लोग हमारे पूरे संस्कारों में संगीत का बहुत समावेश है। हमारी जो फिल्में हैं ज्यादातर, अब तो मैं खैर नहीं कहूंगी, पर ज्यादातर फिल्में भावना प्रधान है, इमोशनल। और सबसे पहले परंपरागत गीतकारों के गीत लिए गए, यानी कि जो पहले से जिनके हमें मालूम थे, जैसे सूरदास, कबीर, गालिब, मीरा, इनके गाने लिए गए थे फिल्मों में। और यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगी पंजाब के शायर और संत बुल्ले शाह का। उनका लिखा ये गीत मुझे बहुत पसंद है और मैं रोज सुनती हूँ इसको, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप लोग सब पंजाब के हैं, आप इससे काफी वाकिफ होंगे। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मोल न पावे, खोटे सिक्के चलदे देखे।
चलदे वेखे, जिना दना जगते कोई वो भी पुत्तर पलदे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलते वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ता पत्थर गलदे वेखे, जिना ने कदर न कीती रब दी, हथ खाली वो मलदे वेखे, कई पैराते नंगे फिरदे सरदे लबन छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। तो कितनी अच्छे विचार हैं कि हम लोग अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड ला सके। बुल्ले शाह के गाने फिल्मों में लिए गए हैं, जैसे कि राज कपूर ने बॉबी फिल्म में लिया था, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो बुल्ले शाह ये कहंदा, और मेरा पिया घर आया, और दमादम मस्त कलंदर शाहबाज कलंदर के उसमें उन्होंने जो लिखा था। तो बुल्ले शाह मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा से आपको बताना चाहती थी। फिर आते हैं हम लोग 1940s में, और इस 40s के दौर को मैं KL सहगल का दौर कहूंगी, और यहाँ मेरी माँ ने मेरी बहुत मदद करी, क्योंकि ये गाने सब मेरे पैदा होने से पहले के थे। और यहाँ पे जो शायर थे वो बहुत नामी शायर थे, कवि मधोक, आरजू लखनवी, केदार शर्मा, पंडित सुदर्शन शर्मा वगैरह, कुमार बाराबंकी। उसके बाद आता है दौर इप्टा का, जो कि इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर से जुड़े हुए कई शायर थे जो कि फिल्मों में आए, और ये थे जैसे कि साहिर, कैफी आजमी, जानिसार अख्तर, इस्मत चुगताई थी उसमें भी। और ये जो थे ये लोग कम्युनिस्ट फिलॉसफी के थे, लेफ्ट साइड की इनकी फिलॉसफी थी। ये एक गरीब और आम आदमी की आवाज बने, और जैसे कि आप लोग काफी जानते हैं, साहिर और शैलन ने काफी गरीबों के बारे में और उनकी तरफ से काफी लिखा। शायर जो होते हैं वो अपना राइट ब्रेन यूज करते हैं। राइट ब्रेन जो होता है, हमारे पास 2 ब्रेन्स हैं, 2 साइड, राइट और लेफ्ट। राइट ब्रेन जो होता है वो इमोशनल ब्रेन होता है, वो कनेक्टिविटी का होता है, वो क्रिएटिविटी का ब्रेन होता है। लेफ्ट साइड जो है वो लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, उसका ब्रेन होता है, फाइनेंसेस, मैथ वगैरह। तो ये जो शायर थे ये अपनी दुनिया में रहते थे, और इनमें से बहुत कम थे जो कि बिजनेस में अच्छे किया हो, जिन्होंने फाइनेंशियली, ये लोग हमेशा ही परेशानी में ही रहते थे, पर क्रिएटिविटी इनकी बहुत ज्यादा थी। शायर संवेदनशील होते हैं, समाज की कुरीतियों से दुखी होते हैं और समाज को बदलना चाहते हैं, दूसरे के गम को जानते हैं, उसको मदद करना जानते हैं, इसीलिए उनकी लेखनी से इतने अच्छे गीत निकले हैं। आज मैं आपको 4 शायरों के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो इतने सारे हैं कि मैं कैसे चुनूं, यही मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है, पर मैंने सोचा कि मैं 4 शायरों को चुनूं। एक आरजू लखनवी, दूसरे शैलेंद्र, तीसरे निदा फाजली, और चौथे आप सब जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं, साहिर। तो सबसे पहले आरजू लखनवी के बारे में बात करते हैं। आरजू लखनवी लेट 30s और 40s में थे, और लखनऊ की जो उर्दू है वो दिल्ली की उर्दू से मुख्तलिफ है। ये मेरे को जावेद साहब ने बताया था, उन्होंने मेरे लिए फॉरवर्ड भी लिखा था मेरी किताब पे। और लखनऊ की उर्दू जो है थोड़ी सी सिंपल है कंपेयर टू दिल्ली की उर्दू ज्यादा खालिस थी, पर बहुत सुंदर। आरजू साहब फारसी और उर्दू के शायर थे, पर हिंदी पर उनको पूरा ज्ञान था। जो सहगल का अमर गीत है, करूं क्या आस निराश भई, उन्होंने लिखा था। उसका मैं एक अंतरा आपको सुनाती हूँ। जब न किसी ने राह दिखाई, दिल से एक आवाज ये आई, हिम्मत बांध संभल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई। आरजू साहब को अंग्रेजों के राज से आरजू साहब चाहते थे कि हम लोग अंग्रेजों के राज से मुक्त हों। हालांकि उनको अंग्रेजों ने काफी सम्मान दिया था, काफी इनाम दिए थे। अब आप इस गाने में खुद ही देख लें कि हिम्मत बांध संभल बढ़ आगे, रोक नहीं है कोई। तो हम लोग जो रोक लगाते हैं वो कोई और नहीं लगाता, हम अपने आप ही अपनी रोक लगा लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये वो नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है।
तो ये मुझे बहुत इसको ये वाला उनकी जो लाइन थी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी सुरीली बांसुरी, और उसमें एक भी शब्द अरबी या फारसी का नहीं है। वो दैट इज अमेजिंग। और पूरी हिंदी में उन्होंने ये लिखा था। तो आरजू साहब के कई गाने हैं और एक बहुत ही अजीम शायर हैं वो। दूसरे शायर गीतकार शैलेंद्र। शैलेंद्र का जन्म रावलपिंडी में हुआ था और वो फिर मथुरा आ गए थे, मथुरा में बड़े हुए। और उन्होंने इप्टा ज्वाइन कर लिया था। वो मैकेनिक की तरह किसी वर्कशॉप में काम कर रहे थे, पर लिखने का उनको चाव था। ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी उन्होंने, पर शैलेंद्र अपने आप में ही इतने उनको गुण था लिखने का कि एक बार वो मुशायरे में अपनी कविता सुना रहे थे, जलता है पंजाब, क्योंकि वो पार्टीशन का टाइम था। और उसको राज कपूर साहब ने सुना और राज कपूर साहब ने कहा कि आप ये कविता मुझे दे दीजिए, मैं आपको 500 रुपए दूंगा। तो शैलेंद्र ने मना कर दिया कि हम अपनी कविता नहीं बेचेंगे। और पर फिर क्या हुआ कि वो शैलेंद्र साहब काफी गरीबी में थे, तो उनको अपनी पत्नी की बीमारी के लिए जाना पड़ा राज कपूर साहब के पास। तो उन्होंने कहा मैं पैसे ऐसे नहीं लूंगा, हालांकि राज कपूर ने कहा आप ले लीजिए। उन्होंने कहा मैं आपके लिए कुछ लिखूंगा। तो उन्होंने बरसात के 2 गाने लिखे थे, बरसात में हमसे मिले तुम, सजन तुमसे मिले हम, और तिरछी नजर है। तो ये दोनों गाने उन्होंने लिखे और उसके बाद वो राज कपूर की टीम में आ गए। तो यहाँ मैं एक शब्द राज कपूर साहब के लिए बोलूंगी कि राज कपूर एक पारखी थे, एक जौहरी थे, जिन्होंने कई हीरो को हम सबको मिलाया, जैसे कि नरगिस, शंकर जयकिशन म्यूजिक डायरेक्टर्स, और शैलेंद्र, हसरत जयपुरी लिरिसिस्ट, और के अब्बास, कई सारे लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और अपनी उनकी टीम बहुत ही ज्यादा, और मुकेश मतलब उनके जो गायक थे। तो राज कपूर की जो इमेज थी, जो कि थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो एक बहुत ज्यादा इंडिया में फ्रीडम की जो फीलिंग थी, और साथ में थोड़ी कम्युनिस्ट लीनिंग्स के साथ, राज कपूर की जो इमेज थी ऑफ अ वेरी हैप्पी हैव नॉट, वो फिल्म्स आवारा, श्री 420 और अनाड़ी से बनी। और इसमें शैलेंद्र का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि गीत सारे शैलेंद्र के थे। वो गाना आप सबको पता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो ये गाना हम सबको बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें किसी दूसरे का दर्द भी अगर हम ले सकते हैं और किसी को प्यार दे सकते हैं। इस गाने की भी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा कि ये दोनों, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, दोनों ने मिलकर लिखा था। वो दोनों टीम की तरह भी काम करते थे। अब मैं अगर शैलेंद्र को कहूंगी कि गागर में सागर, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शैलेंद्र लाइफ की फिलॉसफी को इतने अच्छे से गीत में डाल देते थे। आप सभी वो गाना जानते हैं, आंख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले। तो ये फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का था, और ये डाकुओं की पृष्ठभूमि पे था, और कैसे उनको वापस समाज में लाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर। और एक गीत जो कि तीसरी कसम का है, हम सब जानते हैं, तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
तो कोई इतने सीधे सरल शब्दों में लाइफ की पूरी फिलॉसफी लिख दे, ये शैलेंद्र थे। और शैलेंद्र खाली इसी तरह के गाने नहीं लिखते थे, शैलेंद्र ने कई सारे प्रेम गीत बहुत अच्छे लिखे हैं। अजीब दास्तां है ये, और ये मेरा दीवानापन है, या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो ये तेरी नजरों का है कसूर। सो ये उर्दू में है, और शैलेंद्र दोनों में ही बहुत अच्छा लिखते थे। और एक ये जो मेरे बहुत करीब है इस गाना, ये गाइड फिल्म का है। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर, तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों है मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। और शैलेंद्र की 2 लाइनें मैंने अपने प्रीफेस में लिखी हैं। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान है हम। तो शैलेंद्र का तो आप जितने गोता डालेंगे आपको उतने ही मोती और भी मिल जाएंगे। कई सारे गीत हैं, और मुझे बहुत ज्यादा इस बात की खुशी है कि शैलेंद्र के बारे में मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। शैलेंद्र बहुत जल्दी चले गए हमको छोड़ के, 43 की भी नहीं थी उनकी एज, और तीसरी कसम उन्होंने बनाई थी, और उसके अंदर प्रोडक्शन में, जैसे कि मैंने कहा कि लेफ्ट ब्रेन नहीं काम करता, फाइनेंशियली काफी ज्यादा वो परेशानियों में चले गए थे। और उसके बाद फिर उनका इंतकाल हो गया था बीमारी में। तीसरे जो मैं बोलना चाहती हूँ जिनके बारे में, वो है निदा फाजली। निदा फाजली को मैं आज का शायर बोलूंगी, और आप लोगों ने जरूर मोदी साहब की वो पोएम सुनी होगी, सफर में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो। वो वाला जो पोएम थी वो निदा फाजली की थी। और निदा फाजली जो थे वो मीरा, सूर, कबीर इन सब से बहुत प्रभावित थे, और जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने उनके कई गाने गैर फिल्मी भी गाए हैं और फिल्मों में भी गाए हैं उनके गाने। और एक उनकी 2 लाइनें जो मुझे बहुत पसंद हैं, जो कि फिर मैं ऐसे ही गानों की तरफ मेरा ज्यादा रुझाव होता है, ज्यादा मैं मुखातिब होती हूँ जो कि कुछ लाइफ की फिलॉसफी बताते हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो दोस्तों, ये सच बात है कि जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, जब खो जाती है तो वो लगता है कि वो सबसे, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और एक उनका बहुत अच्छा गाना है जो कि उन्होंने उषा खन्ना जी जो कि म्यूजिक डायरेक्टर थी उस फिल्म की, उन्होंने म्यूजिक दिया था इस गाने के लिए। इस गाने के भी बोल बहुत सुंदर हैं। हर एक शय है मोहब्बत के नूर से रोशन, ये रोशनी जो ना हो जिंदगी अधूरी है, रहे वफा में कोई हम सफर जरूरी है, ये रास्ता कहीं तन्हा कटे तो मुश्किल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। निदा फाजली जो थे वो बहुत ज्यादा चाहते थे कि हिंदू मुसलमान ये सब भाषाएं हिंदू मुसलमान ना बने,
भाषा एक ही है, हमारी भाषा हिंदुस्तानी है, वो भाषा को हम ना तोड़ें इस धर्म के चक्कर में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप भी निदा फाजली की गजलें, उनके इंटरव्यूज और प्रोग्राम जरूर सुने। और अब मैं आती हूँ अपने फेवरेट शायर के पास, जो कि हैं साहिर लुधियानवी साहब। साहिर लुधियानवी से मेरा कनेक्शन है क्योंकि मैं लुधियाना में पढ़ी हूँ और साहिर लुधियाना में पैदा हुए थे और लुधियाना से थे। और साहिर का बचपन आप में से कई लोग जानते होंगे बहुत मुश्किलों में था, क्योंकि उनके पिता जो थे वो जागीरदार थे और उनकी माँ को उन्होंने चूज किया कि साहिर ने चूज किया कि मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा, ना कि अपने फादर के साथ। तो साहिर को हमेशा औरतों के लिए बहुत ज्यादा मन में दर्द था और उनका भी राइट ब्रेन काफी डेवलप था और वो डरते थे एरोप्लेन में जाने से और रेलगाड़ी में भी किसी का हाथ पकड़ के बैठते थे। बहुत ही संवेदनशील और सेंसिटिव पर्सन। कैफी आजमी, जो कि खुद एक बहुत बड़े शायर हैं और कभी हम उनकी भी बात करेंगे। कैफी आजमी ने कहा था कि साहिर से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं है हिंदी फिल्म गीतकारों में। और आप सभी वो लाइंस जानते हैं, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का खेल है सपना, इस सपने को बिसरा दे, कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे ना धीर धरे। तो ये वाला जो गाना है ये चित्रलेखा के लिए उन्होंने लिखा था। और फिर साहिर में भी वही आप पाएंगे कि जो क्रिएटिव लोग हैं वो डिफरेंसेस को जानते हुए भी उसको एक मानते हैं। वो मानते हैं कि हम सब एक ही, सब में उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, वो ये बात वाकई जानते हैं। साहिर ने बहुत अच्छा लिखा था गाना, आपको याद होगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और मैं जब आजकल देखती हूँ इंडिया के हाल, तो मुझे लगता है कि कितना जरूरी है ये सारे इन सारी भावनाओं को, इन सारी फिलॉसफीज को वापस लाना बहुत जरूरी है। और एक साहिर का गाना मैं काफी गाती भी हूँ और ये फिल्म वक्त का था और इसको म्यूजिक दिया था रवि जी ने। और रवि बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं और रवि और साहिर का बहुत साथ रहा है कई सारी बी.आर. चोपड़ा की फिल्म्स में। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे ही हर शय फसाना है, कल किसने देखा है कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। आजकल हम लोग बहुत बात करते हैं माइंडफुलनेस की, तो साहिर ने इतने साल पहले हमको बताया था कि यही पल है और इसी पल में हमको पूरी जिंदगी जीनी है। एक मजेदार किस्सा है चित्रलेखा फिल्म का ही, जिसका मैंने आपको बताया था। चित्रलेखा के सारे गीत हिंदी में हैं, साहिर ने हिंदी में लिखे थे और वो इंदिवर साहब, जो कि एक और बहुत अच्छे हिंदी गीतकार थे, उनको उन्होंने अपने गाने दिखाए कि क्या सब सही है, हिंदी सही है इनकी। तो इंदिवर साहब ने अपने इंटरव्यू में बोला था ये कि मैंने कहा साहिर साहब से कि बिल्कुल सही है, एक भी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। और इस फिल्म के गाने आप सुनिए, संसार से भागे जाते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, ये पाप है क्या ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे जाते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। कितने अच्छे गीत लिखे हैं साहिर ने। और बस मैं आप लोगों के साथ
ये मैंने थोड़ा सा शेयर किया अपनी जर्नी का, और ये मैं लास्ट आपको एक गाना सुनाऊंगी जो कि साहिर की उम्मीद का है। उसको उम्मीद कहते हैं नज्म को। और मैंने अपनी किताब का जो मेरा लास्ट चैप्टर है वो इसी से किया है, और मेरी किताब के शुरू में भी वो है साहिर के बोल। इन काली सदियों के सर से जब रात का चल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you very much. Thank you, Chitra, for such a wonderful talk which you have given. Now, I have a request to make of you, Chitra ji. I would like to make a comment, if I may, Mr. President. Yes, please. Yes. डॉक्टर चित्रा जी ये कह रही हैं कि 1993 से वहां पर हैं कनाडा में। So that means almost कितने साल हो गए? 28 साल सर। 28 साल। 28 साल सर। 1998 आप बच्ची के रूप में गए थे क्या वहां पर? 98 में गए सर, 93 में नहीं। 1998। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आप देखिए कनाडा में जाकर के इतने साल से, और आपकी जो इतनी सुंदर हिंदी में आपने जो कहा है, और सो यू आर इनफैक्ट मैं थोड़ा सा बिकॉज थोड़ा इंटरनेशनल कल्चर में मैं मिला हुआ हूँ, that how you are a link of the country of origin and country that you have adopted. ये आपका जो लिंक है, ये हमारे मैं समझता हूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह के एम्बेसडर, जो एम्बेसडर है जो हैं, so it is not an official ambassador, but you are bringing the international peace understanding. This is remarkable. Perfect. और आपकी जो बिल्कुल आपके और हिंदी है आपने कहा, और अपने और जितने भी हैं, और इतनी आपका प्रोफेशन तो दूसरा है, and you are this is your evocation, so that is remarkable. मैं तो आज I thought that I was जल्दी से निकल जाऊंगा, लेकिन I have stayed here. Thank you very much. Yes, Dr. Dinesh Dua. धन्यवाद प्रेसिडेंट साहब। डॉक्टर चित्रा, मजा आ गया, आपने पुरानी यादें ताजा कर दी बहुत ही सुंदर तरीके से, और जो साबू साहब ने कहा वो बिल्कुल सत्य है। बाहर रहते हुए भी हिंदी आप इतनी शुद्ध और इतनी साफ गोई से बोल लेती हैं। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू मैम। दो चीजें मैम, एक तो आपने प्रॉमिस किया था कि मीनू जी के साथ आप एक आधी लाइन गाएंगी, कृपया जरूर कीजिएगा। और नंबर दो, मैंने ये सुना था कि साहिर लुधियानवी जो थे, उनके दो बहुत ही जबरदस्त अफेयर थे मैम। एक तो सेलिब्रेटेड अमृता प्रीतम जी और सुधा मल्होत्रा जी, तो उनकी पोएट्री में वो एक हैंगओवर या एक ओवरटोन आती है या नहीं आती है मुझे नहीं मालूम है, कृपया बताने की कृपा करें प्लीज। तो मैं आपको ये बताऊं कि सबने पढ़ा है और सबने इस बारे में जाना है और जरूर रहे होंगे।
पर मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा है विमेन लिरिसिस्ट पे, और उसमें मैंने अमृता प्रीतम के बारे में लिखा है। तो मेरी कजन सिस्टर जिन्होंने मेरे को गाइड किया, उन्होंने कहा तुमने क्यों नहीं मेंशन किया साहिर साहब के बारे में। तो मैंने कहा मैं उन पोएट्स को एक बहुत ही जैसे कहते हैं पुजारी की तरह मैं उनको देखना चाहती हूँ। और हाँ, जरूर उनके अंदर भावनाएं थी, उनके फीलिंग्स थे, हो सकता है कुछ अच्छा बुरा हो, पर मैं अमृता प्रीतम को एक अपना स्थान देना चाहती थी कि वो एक विमेन लिरिसिस्ट हैं अपने ऊपर। हर एक बार नहीं तो सब यही समझते हैं वो साहिर साहब के साथ उनका अफेयर है। हालांकि जो सुधा मल्होत्रा का गाना है, जो कि सुधा मल्होत्रा ने स्वरबद्ध किया, जी। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तो जरूर साहिर को इंस्पिरेशन तो जरूर हुई होगी इन वाह, सबसे। वाह। पर ये मैंने अपने आपको मेरी बुक में कोई स्कैंडलस और कुछ नहीं मिलेगा ये मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, वो चाहिए भी नहीं जी। मजा आ गया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और एक प्रार्थना कर सकता हूँ क्या कि जी, आप please. कौन से शहर में है वहां पर कनाडा में? लंदन। लंदन ओंटारियो, टोरंटो के पास है। उसके आप रोटरी से कोई संबंध नहीं है आपका? मेरा रोटरी से संबंध मेरी फ्रेंड के थ्रू है। मेरी बेस्ट फ्रेंड भूमा है, उनके फादर रोटेरियन है। मैं एक आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि मैं वहां से जो भी क्लब है वो आपको इनवाइट करेंगे कि आप हमारे मेंबर बन जाएं। बहुत सुंदर साहब। मैं एक पता नहीं कि आपकी क्या परिस्थिति है और कितना आप कर सकेंगे, लेकिन फिर भी आप यदि आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। मैं अब मीनू से रिक्वेस्ट करूंगी। तो मीनू को मैंने जिस गाने के लिए बोला है वो गाना किशोर कुमार साहब ने लिखा है, और किशोर कुमार को हम सब जानते हैं एक जीनियस के रूप में। वो राइटर Minu is my like a sister, and I will get all the details उनसे और फिर हम कोशिश करेंगे। Perfect, sir. Please do think about that. So Minu, are you ready to sing Kishore Kumar? Yes, I will sing, and I do appreciate आपका जो उर्दू का तलफ़ुज़ और आपकी जो तरन्नुम जिसमें आप गाती हो, वैसा रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। Although you are a replication scientist. उर्दू में नहीं समझ में आती। मतलब तफल्लुस। मुझे ऐसे लगता है कि कई वर्ड्स ऐसे हैं जो उर्दू में बोले जा सकते हैं। बहुत मैं तो आया तो इतना प्रभावित हो गया हूँ। हाँ जी। So I'll just sing a song जो चित्रा के लिए है। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू। आई डोंट नो, अगर मम्मी हो लिंक पे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 लाइन बोल दें। मम्मी? डॉक्टर साहब है नहीं वो। अच्छा, है। रुके है मैम, है। शी इज देयर। बिल्कुल हाँ, छोड़ के अम्मा, नहीं, माता जी, अम्मा very दो much लाइन clear. बोल दो तुम। अनम्यूट कर लो मम्मा। मैं हिंदी में ही कहूंगी कि आज का ये सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, और जो रोटरी क्लब चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट हैं और मेंबर्स हैं, उन सबको मैं बधाई दूंगी कि उन्होंने ये आवश्यक समझा कि ये संगीत में शाम बनाई जाए। आप सबकी जानकारी के लिए
मैं और मेरे हस्बैंड, मैं लॉयनेस क्लब रेवाड़ी की चार्टर प्रेसिडेंट हूँ और मेरे हस्बैंड लॉयंस क्लब के, और हम दोनों के रहते हुए जब चित्रा लॉयंस में नहीं आई तो ये रोटरी में कैसे जाएंगी? जाएंगी माता जी, जाएंगी। नहीं, वो तो आ जाएगी। इनको खींच के लाएंगे जी। हमें कोई एतराज नहीं है, दोनों संस्थाएं दुनिया की सबसे अच्छी सेवा संस्थाएं हैं। और बाकी चित्रा तो वैसे ही काफी कुछ करती रहती है अपने वहां पे। मैं अधिक प्रेज नहीं करूंगी, वो मेरी बेटी है, आप सबने खुद ही देख लिया है। अब आप उसकी बुक पढ़िएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने का। अरे वाह, Very nice. अरे वाह। एक बात ये और कहूंगी कि चित्रा ने अपनी दोनों बच्चियों को हिंदी बोलना और अब उन्हें पढ़ना भी गीता के रूप में सिखा रही है। और गाना भी माता जी, गाना भी। अरे वो बहुत अच्छा गाती है। बहुत सुंदर जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। और नेशनल एंथम बहुत अच्छा था। मैं खड़ी नहीं हो सकती, मुझे स्ट्रोक हो चुका है, इस कारण बैठे रहना पड़ गया, बड़ा दुख लगा। Thank you very much for joining us back. It's a pleasure. Our pleasure. Over to the president now. Now I would like to request our Rotarian Dr. Roma Uppalji to convey a vote of thanks to the guest. Chitra, it has been a pleasure to hear you. And it is my proud privilege to propose a vote of thanks on the spell that you cast on the club this evening. Most of all, you belong to my alma mater. And your foundation of your professional life started from there. Even Shairi was touched by Professor Wadia. And what heights you have reached. You know, songs and things which we say mechanically, they have so much depth. We never pause, we just do it mechanically, but it is the philosophy of life which you have put in front of us. And I would love to read your book. And I love the creativity of the right brain that you have put to the full use. I always say accomplished people have intellect intertwined, but now I know they have the right brain intertwined. Fantastic. The right brain. The right brain. The Absolutely. right brain on the right side makes you creative. You make us so proud of you. And I'm so glad to see your parents seeing you make proud of you. I hope you will cast a spell again on our club sometime. God bless you. Over to President. I'm just going to show my book. It's available on Amazon India. So Meenu, jaldi se kharido. Sure, ma'am, sure. First thing I'm going to do that after this meeting. Yes. Amazon India pe hai. Sure, ma'am, sure. Okay. ये तो सबको खरीदनी पड़ेगी, हैं? मुझे भी बहुत शौक है म्यूजिक का, but I never got time. I didn't have a foundation, you know, to start like you had. But सुनना बहुत अच्छा लगता है. 40-50 साल पीछे ले गई मैम, बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. किसी ऐसे गगन के तले. It's such a beautiful song. She has cast a spell. Absolutely.